Okay, good morning everyone. I'm going to start with the concept of e-commerce. E-commerce is basically the act of buying and selling of goods or services using your internet. आप इंटरनेट को यूज़ करके अगर गुड्स या सर्विसेज की ट्रांजेक्शन्स करते हो, एक्सचेंज अगर आप करते हो गुड्स और सर्विसेज में, तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं. इट मीन्स कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स the transfer of ownership or the rights of any goods or services through e-medium or electronically. If we are exchanging or transferring the rights or ownership of the goods from one person to another person, then it is known as the e-commerce. It allows consumers to exchange goods with no barriers of time or distance. आप जब चाहे ई कॉमर्स के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यू कैन प्लेस द ऑर्डर्स and get the services or get the products delivered at your home. Now e-commerce, it was defined by Mr. Gristain as it is the use of electronic transmission media or telecommunication to engage in the exchange of products and services requiring transportation either physically or digitally from one location to another location. ई कॉमर्स में जब भी हम गुड्स या सर्विसेज की एक्सचेंज की बात करेंगे तो या तो वो एक्सचेंज फिजिकली हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओनरशिप इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और इट कैन बी ट्रांसफर्ड एट डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली. When we talk of e-commerce, you have different characteristics of business operations and transactions, which includes B2C and B2B transactions. B2C is business to consumers and B2B is business to business. तो इसमें होता क्या है कि जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गुड्स या सर्विसेज के लिए ट्रांसफ़र के लिए, राइट्स के लिए, ओनरशिप के लिए, एक्सचेंज के ऑर्डर्स हम डाल देते हैं, तो इट कैन बी फ्रॉम B2C. That means the goods and services are being transferred from the business to the ultimate consumers who are consuming the product or the or availing the services. Or it can be from B2B कि एक business का जो output है, जो finished product है, that can be the raw material or input for some other business, and they are placing order at digital platform electronically. अगर orders place करते हैं, then it will be the B2B transactions when the goods or services are being taken up from one business to another business. The second characteristics you have is the EDI, electronic data interchange. आप ई मीडियम के थ्रू कोई भी डेटा को चेंज करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं अपने यूज़ के लिए. Apart from these two, you have electronic payment modes also. If you are purchasing something, if you are availing some kind of services through a digital platform, then you have the option to make payment at a digital platform. Electronically you can make the payment also. Like आपके पास नेट बैंकिंग होती है, ई बैंकिंग है, ई वॉलेट्स हैं, आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके you can make the payment. Then you have the concept of e-marketing and online services also. जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं, so that they can avail those services or they can purchase the product and they can satisfy their needs and desires, you go for marketing. You basically, the business wants to make the customers aware about the products they are selling in the market. तो पहले क्या होता था कि ई मार्केटिंग नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं थी, तो कंपनीज होर्डिंग्स यूज़ करती थी, पैम्फलेट्स इशू करते बांट देती थी, सर्वेस कराती थी, फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी. बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केटिंग के जिनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करती है, सो दैट द कस्टमर्स, द पोटेंशियल कस्टमर्स हु आर अवेलेबल इन द मार्केट, दे आर अवेयर ऑफ द particular product of your company and the sales can be increased. तो अब digitalization होने की वजह से the company has the option to go for e-marketing process, where the company has digital platform where the company can make aware your potential customers, they can be aware of your product at digital platform also.
इसके अलावा में लास्ट कॉन्सेप्ट जो होता है दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली क्या है कि इट्स ईजी फॉर the customers to be in touch with the company। अगर आपको कोई प्रोडक्ट की या सर्विसेज के बारे में कोई डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप कोई सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू हैव परचेज सम प्रोडक्ट और यू हैव अवेल्ड सम काइंड ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद में आपको आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी तरीके की कोई शिकायत है, ग्रीवांसेस हैं, फीडबैक है, then you can be in touch with the कस्टमर केयर डायरेक्टली, जिसे आप कंपनीज के साथ डायरेक्टली अपने घर बैठे बैठे भी कनेक्टेड रहते हैं। तो दैट और कंपनी के लोग भी जितने भी हैं दे कैन ऑल्सो बी इन टच विद द कस्टमर्स। तो ये आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। देन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर मॉल और वर्चुअल मॉल। साइबर मॉल और वर्चुअल मॉल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मॉल बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इट्स अ प्लेस इन द मार्केट वेयर each and every kind of product or services may be available for the customer at a single place। तो वो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर आप जाएंगे, आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। वर्चुअल मॉल या साइबर मॉल की अगर हम बात करते हैं तो एज द नेम सजेस्ट वर्चुअल है, एक्चुअली उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड यू आर placing the order, you are getting some kind of product or services at using your internet। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही ये सब आप काम कर पा रहे हैं। तो वर्चुअल स्टोर्स भी हैं, साइबर स्टोर्स भी हैं, ई रिटेलिंग होती है, ऑनलाइन रिटेलिंग। मैन्युफैक्चरर्स दे आर बेसिकली सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन इटसेल्फ। तो उनका कहीं पे भी जो मार्केट है, मार्केट एरिया फिजिकली एग्जिस्टेंस में नहीं है, अगर उन्होंने वेबसाइट्स क्रिएट की हुई हैं and they are getting orders through internet or at digital platform, then it is the concept of virtual mall or cyber mall। Now sometimes what happens is that the e-commerce people, they simply refer e-commerce as the buying and selling using the internet, but it involves much more than electronic media। It involves financial transactions also between the customer and the business organizations। You have different perspectives for e-commerce। The first perspective is a communication perspective, which talks product, services or payment using the e-channel, electronic media। Then you have a business process perspective, which talks of the application of technology towards the automation of business transactions and workflows। The third concept or the perspective is the service, which basically talks of the enabling cost cutting, at the same time increasing the speed and quality of service delivery। यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है सारे के सारे, कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर इन connection, they are connected fully with the potential customers or the existing customers, and the communication is better just because of the electronic medium, and the technology, updated technology is being used by businesses so that it can help the businesses to have the expansion or growth। सर्विसेज के लिए क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ करके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इट बेसिकली हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस टू कट द कॉस्ट और टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। at the same time they can have the less time consumed in the delivery of the service or the goods। तो जब हमने प्लेटफॉर्म ई मीडियम का यूज़ किया है तो व्हाट हैपन्स इज कि अगर मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना ऑर्डर कोई प्लेस किया प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू रोम अराउंड इन द मार्केट। फिजिकली मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने घर पे बैठे बैठे किसी भी टाइम मैंने ऑर्डर प्लेस किया एंड आई एम जस्ट गेटिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर्ड एट माई होम। तो उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है कि मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा, और इसी तरह कंपनीज के लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि कंपनीज की जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट जो वो इनकर करते हैं एट द time of providing goods and services, that can be reduced। इनके अलावा में आपके लिए नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज द इंटरफेस पर्सपेक्टिव, जिसमें होता है इट enables the information and transaction exchanges। तो जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो पार्टीज के बीच में, नाउ आई एम यूजिंग द टर्म टू पार्टीज बिकॉज इट कैन बी
The one party is buyer and the second one is the seller. It can be B2B transaction, that means business to business transaction, जहाँ पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों बिजनेस इन्वॉल्व हैं और एक बिजनेस का जो फाइनल प्रोडक्ट था वो किसी और के लिए रॉ मटेरियल या इनपुट कहीं वो यूज़ करते हैं, दे आर परचेजिंग फॉर द फाइनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम अदर प्रोडक्ट. Then it can be a transaction between business to the ultimate consumers. And the third kind of transaction may be like a consumer to consumer. आप भी consumer हैं, आपने कोई product purchase किया हुआ था, now you don't want to use it further and you want to sell it. तो आप भी, आपका रूटीन में कोई काम नहीं है. For example, I'll just take the example. I'm using my mobile phone. Somehow I'm getting bored. मुझे मोबाइल चेंज करना है. What I'll do is I just want to sell it. Now what I have the option कि मैं इंटरनेट पे लेट्स से OLX की एक वेबसाइट आपने सुनी होगी. OLX एक प्लेटफॉर्म डिजिटल लेवल पे है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स को, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अगर वो अपनी कोई भी चीज़ को बेचना चाहें उस पर इसका स्कैन करके डिटेल डाल देंगे एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑल्सो, जिनको उस चीज़ की ज़रूरत होगी, दे कैन कनेक्ट विद यू एंड यू कैन सेल द प्रोडक्ट. तो अब होगा क्या कि मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल है जिसको मैं डिस्कार्ड करना चाहती हूँ, सेल करना चाहती हूँ. तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई जस्ट शेयर द डिटेल्स ऑफ माय मोबाइल फोन, लेट्स से ऑन OLX. व्हाट विल हैपन, आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर, क्योंकि वो मैंने एज कंज्यूमर परचेज किया था. तो जब मैंने परचेज किया था तो दैट वुड हैव बीन द ट्रांजेक्शन B2C वाली. अब वो मैं बेचना चाहती हूँ तो मैं कोई भी सेलर नहीं हूँ इन द सेंस कि वो मेरा कोई बिजनेस नहीं है. मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत रेकरिंग नेचर में ट्रांजेक्शन्स नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ अपना एक यूज़ किया हुआ फ़ोन को वापस मार्केट में बेच रही हूँ सो दैट आई कैन फेच सम मनी आउट ऑफ इट बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ इट फर्दर. अब उसमें होगा क्या कि जब मैंने OLX पे डाला उसको, तो वो कोई और जो जिसको भी पसंद आएगा, कहीं पे भी जो भी ट्रांजेक्शन वो सेटल हो जाएगी किसी कस्टमर से, जो वो मोबाइल चाहेगा, उसको पसंद आएगा, वो परचेज कर लेगा. नेगोशिएट हो सकता है, नेगोशिएट करें, वो मान लीजिए वो बिक गया, तो अल्टीमेटली ही इज़ ऑल्सो द कंज्यूमर. तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज C2C वेयर दी टू पार्टीज, जो एक बायर है एक सेलर है, लेकिन दोनों ही अल्टीमेट कंज्यूमर्स थे. दोनों में से कोई भी, सेलर जो भी था कंज्यूमर में इस टाइम पे C2C में, whosoever is selling the product or सर्विस, उसमें भी वो उसका रेकरिंग नेचर का वो काम नहीं है, वो ट्रांजेक्शन्स बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं, उसने सिर्फ अपना कोई प्रोडक्ट को आगे वापस बेचा है. तो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस पर्सपेक्टिव इज देयर दैट व्हेन यू हैव the option to communicate with business organizations or customers or some other parties, you have digital platform और आप उसमें डेटा इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सचेंज कर सकते हो. अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट कि आप किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को मेक आउट करेंगे. ऑनलाइन पर्सपेक्टिव में आपका, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, इंटरनेट की आपको ज़रूरत है एंड यू कैन बाय एंड सेल एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट इटसेल्फ. द पर्सपेक्टिव इज एज अ मार्केट. इट्स अ मार्केट, जो मैंने आपसे कहा कि जैसे इट्स अ काइंड ऑफ साइबर मॉल और साइबर मार्केट, वर्चुअल मार्केट है. एक्चुअल फिजिकली एग्जिस्टेंस इसकी कहीं नहीं है, बट इट्स बेसिकली bringing together all customers, suppliers, competitors, bankers, all institutions or business people under one roof. सबके सब इकट्ठे एक जगह आ जाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. कोई भी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, किसी भी तरीके के गुड्स में एक्सचेंज कर सकते हो. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ e-commerce. Now I have used two terms. One is data and one is information. When we when we talk of the transactions, we talk of data and information also. Now what is the difference between data and information? Data and information में होता क्या है कि if I am taking some raw facts and figures, then it means it's a data. उनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है. For example, if I say BCom honors, third semester, School of Open Learning, 5000 स्टूडेंट्स, ई-कॉमर्स क्लास. अब मैं अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें आपको रैंडम बता रही हूँ,
5,000 में से लेट्स से 4,000 गर्ल्स, रेस्ट बॉयज़, इस तरह की अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे, मतलब अगर आपको ये जब सब चीज़ें बता रही हूँ इंडिविजुअली, तो दैट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। आप उसको लिंक करोगे जब तक, तब तक ही उसका कोई मतलब आएगा। इंडिविजुअली इफ आई से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसके बाद मैं चुप हो जाती हूँ, तो व्हाट डज दैट मीन? इफ आई से ई कॉमर्स, वो क्या है, मतलब उसके आगे क्या, आप मुझे देखोगे कि भाई इसके आगे आप या तो कुछ बोलो, कुछ पूछो, कुछ बताओ। खाली, सॉरी, खाली ई कॉमर्स अगर मैं बोल दूँ, 5,000 स्टूडेंट्स बोल दूँ, इंडिविजुअली अगर मैं ये सब फिगर्स आपको बता रही हूँ, तो व्हाट डज दैट मीन? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो जब भी हमारे पास रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं विच इज़ नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ मीनिंग टू यू, दैट इज़ नोन एज द डेटा, जिसमें कोई अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास सिर्फ रॉ फैक्ट्स या फिगर्स ही होते हैं। when we give the meaning to all the raw facts and figures, जो हमारा डेटा है उसको जब हम कोई मतलब दे देते हैं, then it becomes the information. Now when we talk of e-commerce, the data is also there, which means raw facts and figures are there without any kind of meaning, and once the meaning is being given to the raw facts and figures, it is being converted into the information, which is again being shared at the digital platform. तो डेटा और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें हैं आपकी ई कॉमर्स में, जिसमें डेटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ मीनिंग, एंड वंस द मीनिंग इज देयर, व्हेन यू कन्वर्ट, when you process, basically the processing is to be done on the raw facts and figures. अब आपको उसको खुद से एनालाइज करके उसका मतलब लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ई कॉमर्स, बी कॉम ऑनर्स, थर्ड सेमेस्टर, 5,000 स्टूडेंट्स। नाउ इंडिविजुअली अगर ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, तो दिस इज these all are the raw facts and figures without any kind of meaning. तो this is basically a data. अब अगर आप अपना दिमाग इस पे लगा दोगे और उसके बाद आप ये अपने आप से एनालाइज कर लोगे कि इन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यू हैव बीकॉम, इन बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर यू हैव अ पेपर ऑफ ई कॉमर्स इन विच यू हैव 5,000 स्टूडेंट्स और 6,000 स्टूडेंट्स, देन इट्स समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल. तो यू बेसिकली व्हाट यू हैव डन इज यू हैव अप्लाइड योर माइंड टू रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो डेटा मैंने आपको दिया उस पर आपने अपना दिमाग लगाया. अब जिसने जितना दिमाग लगाया होगा उसने उतनी ही उसकी एनालिसिस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया होगा. So basically what we are doing is we are taking raw facts and figures, we are processing those figures and getting it converted into information which is being shared at the digital platform with all the business houses and the customers. Now coming to the process of e-commerce. Okay, I hope it's clear to everyone. In case you have any doubt, you can just share your doubts in the chat box. Okay, now coming to the process of e-commerce. The process of e-commerce is that you are making purchases or you are selling something, a product or services at digital platform. What happens is that you have to create if from the point of view of business, if I talk, then they have to prepare their website. उनको वेबसाइट को डिज़ाइन करना पड़ेगा. वेबसाइट पे डिज़ाइन करके दे हैव टू place all the information, they have to put all the information of their products and services they are basically providing to the customers. वो सारा का सारा उनको वेबसाइट पे दिखाना पड़ेगा. And they have the whole process where the customers can log in to their website. उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा. वंस यू आर बीइंग रजिस्टर्ड एंड यू लॉग इन टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट, देन यू कैन ब्राउज ऑल द कैटलॉग्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे हैव, या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने वेबसाइट पे जिस भी फॉर्म में जो भी उनका डिज़ाइन होगा, लेआउट होगा वेबसाइट का, कैटलॉग है इंडिविजुअली उन्होंने डाली है विदाउट यूजिंग द फॉर्मेट ऑफ कैटलॉग,
the information is being shared by the business houses regarding their product and services. You have to just log in to the website and just browse all the information which is being there. If once you are अगर आप देखोगे तो उसमें कैटेगरी वाइज भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की. आप उसमें कैटेगरी वाइज आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे. once the items you want to purchase, you select those items and they are supposed to be placed in the shopping cart. shopping cart पे जब उसको आप ऐड करते चले जाओगे, ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय द यूजर. आपको वो ऑर्डर प्लेस के ऑप्शन पे लेकर जाएगा. पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस आएंगी. द टोटल कॉस्ट जो होगी ऑर्डर की, दैट वुड बी शेयर्ड बाय द मर्चेंट और द वेंडर विद यू कि टोटल आपके इतनी आइटम्स आपने ऑर्डर प्लेस की हैं, इतनी इसकी कॉस्ट है. अगर शिपिंग चार्जेस हैं, कोई टैक्स लग रहा है, अगर कोई डिस्काउंट है, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको बिल जनरेशन के टाइम पे आपको दिखेगी. एंड यू वुड बी एबल टू सी द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर यू आर प्लेसिंग एंड द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर ऑन द स्क्रीन. देन द कस्टमर हैज़ टू मेक द पेमेंट. अब कस्टमर जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, पेमेंट के लिए you have nowadays you have too many options. You have the option of making payment using your net banking, or you may use your debit cards or credit cards. You can use e-wallets like Paytm. आप इस तरह के e-wallets को भी use करके आप पेमेंट कर सकते हैं. And some business houses, they give you the option to make payment in cash at the time of delivery of goods. That means COD जो ऑप्शन होती है, कैश ऑन डिलीवरी, कि जब आपके पास प्रोडक्ट्स घर पे डिलीवर हो जाएंगे उस टाइम पर यू कैन मेक द पेमेंट. तो जो भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, कस्टमर जो भी ऑप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देगा अपनी पेमेंट के लिए कि नाउ दिस मोड आई वुड लाइक टू यूज़ फॉर द पेमेंट, तो आप उस वाले लिंक पे आपका वेबसाइट चली जाएगी एंड यू विल बी able to make payment accordingly as per your choice. Then the order will be completed and it can be initiated by the business so that it can be delivered to you ASAP. इसके बाद once the order has been placed successfully with the business house, the customers, they get the confirmation through emails or via your SMS. तो वो भी सारा का सारा ऑनलाइन ही है. आप ईमेल के थ्रू आपके पास वेरिफिकेशन आपके पास मेल आ जाएगी कंफर्मेशन की दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. उसके बाद जब भी हम ऑर्डर आजकल प्लेस कर देते हैं, यू कैन चेक दी ऑर्डर स्टेटस. जब भी आप चाहो आपके पास आप लॉगिन करके आप अपने ऑर्डर का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, कि वेदर इट हैज़ बीन पैक्ड or it has been shipped, it has been dispatched from the warehouse of the business. अगर उन्होंने dispatch किया है, जब business dispatch आपका ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल जाता है, dispatch किया जाता है, then you also get the mail और message जहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा डिटेल आता है कि that your order has been dispatched for the delivery. उसमें sometimes you have the time also कि कब तक आपके पास उसकी डिलीवरी हो जाएगी, you will be getting the product. उसके साथ में जिस शिपमेंट के थ्रू, जहाँ से जैसे भी कैरियर के थ्रू आपका गुड्स डिलीवरी की जा रही हैं, उसकी डिटेल भी होती है सो दैट यू कैन ट्रैक दैट ऑल्सो. एंड इन केस यू हैव सम प्रॉब्लम देन यू कैन कनेक्ट टू देम. अब ये सारी ऑप्शंस सब जगह नहीं होती है, लेकिन हाँ मेजॉरिटी आजकल कंपनीज इस तरह से ऑप्शंस देने लग गई हैं कि आप अपना जो भी आपका ऑर्डर था उसका जो स्टेटस है आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट करके रख सकते हो कि आपका ऑर्डर का स्टेटस कहाँ क्या है. देन योर ऑर्डर विल बी delivered to you, and in case you have opted for COD option, that means cash on delivery, then the delivery person will collect the cash and will deliver the goods to you. Now this is the simplest process of the whole concept of e-commerce. Now we are talking about the concept of e-commerce. Why the e-commerce concept is very significant, or it's playing a very pivotal role in today's market scenario. ऐसा क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप चाहो कि आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल करने हैं,
The moment you want a product, you can just place the order using digital platform. There is no need to roam around, there is no need to go anywhere. आप जब जहाँ चाहो किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर या सर्विसेज के लिए आप ऑर्डर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो. तो इट्स बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको कहीं रोम अराउंड नहीं करना है. आपके लिए मार्केट की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे, प्रोडक्ट को ढूंढोगे, सर्च करोगे, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू सर्च प्रोडक्ट फॉर which you want for every which is being provided by different companies. तो आप अलग अलग ब्रांड्स की अगर बात करो, कंपैरिजन करना चाहो, तो हर कंपनी के ब्रांड्स के लिए हर प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर पाओगे, जो कि आपके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंपैरिजन करना इजी हो गया. आप सेम प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज जो प्रोवाइड कर देती हैं, मार्केट में हैं अलग अलग कंपनीज के, आप उसको इंटरनेट पे सर्च करके कंपैरिजन भी कर सकते हो और वहीं पे उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो. तो आपके पास जो मार्केट रीच है वो मार्केट रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से. एट द सेम टाइम इफ़ वी टॉक ऑफ दी एंगल ऑफ एनी बिजनेस, तो बिजनेस के लिए भी वो एक्सपेंशन हो जाती है. क्योंकि बिजनेस हाउस की अगर हम बात करें, तो आप अपने एक शोरूम या अपनी मार्केट में फिजिकल एग्जिस्टेंस कितनी लिमिट तक रख पाओगे. टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा है, आपने पैसा बहुत ज़्यादा लगा रखा है, देन इट मे बी पॉसिबल फॉर यू टू हैव नंबर ऑफ शोरूम्स, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी बिजनेस पर्सन. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्ट टू गो फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस. वो इससे इनडायरेक्टली एक्सपेंशन कैसे हो जाती है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपने अपनी वेबसाइट बना रखी है, तो आप नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल पे भी आप रीच आउट कर जाते हो. क्योंकि एनी बडी हु इज़ अवेयर ऑफ योर वेबसाइट, दे कैन they would be aware of the product you are producing or you are making available for the अल्टीमेट कंज्यूमर्स. तो बेसिकली अगर हम ई कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो इट हेल्प्स यू इन इन हैविंग द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मार्केट रीच. कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराने की कोशिश की जस्ट बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म. जो उसकी विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलेशन के पास है. अदरवाइज़ अगर आप फिज़िकली कहीं पे भी एक मार्केट में बैठे हुए हो, एक एरिया में, एक मार्केट प्लेस पे, तो वहाँ पे जितने लोग विज़िट करेंगे, वहाँ उन्हीं लोगों के पास सिर्फ अवेयरनेस हो सकती है या पब्लिसिटी ऑफ माउथ हो सकती है थोड़ी बहुत. लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हर जगह नहीं जा सकते. अगर मैं फ़िज़िकली मार्केट में जाने की भी बात करूँ, तो मैं सब जगह नहीं जा सकती. मेरे पास एक जो मार्केट रीच है वो एक लिमिट में आ जाएगी. मैं ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली हर लेवल पे नहीं हर कोई जा सकता है. तो इट हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू reach out to the more and more potential customers just because they are at digital platforms. It also helps in strengthening the business relationship. ये कैसे? Because there is a huge potential of implementing business to business communication on the internet. A business relationship में we are talking of B2B, where different business organizations, they are connected to each other somehow. वो आपस में उनका बिजनेस चल रहा है, तो उनका एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है. एक आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो और बिजनेसेस के भी साथ में. अदरवाइज इट्स नॉट ईजी. अगर मैं मान लीजिए मेरा ऑफिस दिल्ली में है, एंड इफ़ आई वांट टू कनेक्ट विद सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से इन चेन्नई, तो या तो मुझे वहाँ खुद जाना पड़ेगा या किसी को भेजना पड़ेगा. दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, दैट वुड बी कंज्यूमिंग सम, दैट आई वुड बी इंकरिंग सम काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर दैट ऑल्सो. तो वो टाइम कंज्यूमिंग के साथ में कॉस्टली भी हो जाएगा. लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से व्हाट आई कैन डू इज, इट वुड बी ईजी फॉर मी टू कनेक्ट टू सम बिजनेस हाउस विच इज़ देयर लोकेटेड इन चेन्नई. तो वो मेरे लिए बहुत इजी है कम्युनिकेट करना. तो बिजनेस टू बिजनेस जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, दैट इज़ ईजी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट यूजेज. इसके अलावा में जो रिस्पॉन्सिवनेस की टर्म की बात आती है, रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स that you are effectively handling all kind of problems
and returns through the site. अब इसमें क्या है कि अगर कस्टमर के हिसाब से अगर बोलें कि कस्टमर ने रिस्पॉन्स दिया, कोई फीडबैक दिया, तो वो आपकी कंपनी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर्स के फीडबैक आपको मिलना. इट इन्वॉल्व्स द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर्स to purchase or to exchange goods or services also, and if they have taken up some goods or services from your organization, your business, and they are giving some kind of feedback, that would be helpful for future also. तो अगर उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समहाउ अगर उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स कुछ है, कोई प्रॉब्लम उन्होंने अपनी शेयर की है, कोई फीडबैक अगर नेगेटिव है, तो वो आपके लिए इसलिए आपके लिए बेटर है क्योंकि आपको एक टाइमली फीडबैक मिला, बिकॉज कस्टमर्स दे हैव द ऑप्शन टू गिव द फीडबैक ऑन इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट. तो वो कस्टमर्स रेजिस्ट भी नहीं करेंगे, हेजिटेट भी नहीं करेंगे. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर देयर इन द मार्केट एट फिजिकल प्लेस, तो व्हाट हैपेंस इज यू डोंट हैव टाइम. तो अगर आपसे फीडबैक मांगा भी जाता है तो बहुत कम लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में. अदरवाइज एवरीबडी वुड लाइक टू जस्ट इग्नोर इट कि नहीं ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है, या वो सही से फीडबैक नहीं देते हैं just because of the shortage of time. They don't want to get involved in this kind of process of giving feedback. But if they have the option of giving feedback on digital platform, they give response quickly. और अगर उनके आफ्टर सेल सर्विसेज हैं उसके बारे में भी वो आपको बता सकते हैं. एंड वंस यू आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, देन यू कैन टेक corrective measures for future in case you have received any kind of negative feedback for your product or services from the customers. तो अगर customers ने कोई कमी बताई प्रोडक्ट की, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी अगर उन्होंने शो की है अपने फीडबैक में, सर्विसेज अवेल करने के टाइम पे या प्रोडक्ट अवेल करने के टाइम पे, और आपको वो पता चलती है, देन इट वुड बी ईजी फॉर द कंपनी कि वो उसको कॉप अप करें, उसको ठीक करें. एक बहुत कम टाइम पे आपके पास क्योंकि फीडबैक आ जाता है, तो वो बहुत जल्दी से ही कंपनी उसको ठीक कर देती है करेक्टिव मेजर्स लेके, सो दैट इट वुड बी नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर ऑन दी सेल्स ऑफ द कंपनी. इसके अलावा कंपनी अलग अलग तरीके के नए प्रोडक्ट्स भी दे सकती है, नई सर्विसेज भी दे सकती है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर उनको नहीं करनी पड़ती. इन केस कंपनीज बिजनेस वांट्स टू गो फॉर द एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपेंशन में हमेशा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. बाकी सारे जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वी नीड ऑल काइंड ऑफ एसेट्स एंड रिसोर्सेज if we want to go for the expansion or diversification process. अब क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो इट वुड बी ईजी फॉर द कंपनी टू गो फॉर the expansion process or to go for diversification, and the company can easily offer some new kind of products or services to the ultimate consumers with less cost of that startup. तो अगर कंपनी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विसेज देना भी चाहेगी, तो उसमें जो इनिशियल कॉस्ट होती है, एक्सपेंशन अगर करना चाहें, तो उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट बहुत कम इन्वॉल्व हो जाती है इफ़ वी आर डूइंग इट एट डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने की सबसे जो मेजर फ़ायदा है वो कंपनी का ये होता है कि आपका जो मार्केट में पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हैं. आपके जो मार्केट में पेनिट्रेशन है, दैट वुड बी मोर एज कम्पेयर टू द फिजिकल बिजनेस यू आर रनिंग इन द मार्केट. Your customer number of customers will be more. You may go for expansion, you may go for diversification, you may offer new kind of services and products for to the customers with less amount of less investment as compared to the investment which may be required if you go for expansion in the physical form. टाइम जो है, टाइम बहुत ज़्यादा कम आपका इन्वॉल्व हो जाता है, और आपका मेजर जो इम्पैक्ट आता है वो आपका कॉस्ट पे आता है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कंपैरेटिवली. ग्रेट एफिशिएंसीज हैं, ओवरहेड्स जो आपकी इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती हैं, दैट इज़ रिड्यूस टू लार्ज एक्सटेंट. तो अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपने बिजनेस को बढ़ा लिया, कस्टमर्स आपके बढ़ गए,
कॉस्ट आपकी कम हो गई तो आपको आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट आ जाता है. Now this was the whole concept of the reasons, you may say, or the significance why we are going digital. Now the next concept is, we have two concepts now. The first one is the traditional commerce and the second one is the e-commerce, which we are discussing right now. Traditional commerce is basically जो पहले बिजनेसेस रन होते थे फिजिकल फॉर्म पे. ट्रेडिशनल में आपका सारा का सारा फिजिकल कॉमर्स आता है, जिसमें कि आप मार्केट एरिया की बात करते हैं, मार्केट प्लेस की बात करते हैं, जहां कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को मार्केट में बेचते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द ई-कॉमर्स इज बेसिकली एक्सचेंजिंग goods and services using the internet. Now what is the difference between these two, traditional commerce and e-commerce? The first is that when we talk of traditional commerce, you have the direct interaction between the buyers and customers. अगर आप मार्केट में जाते हैं तो जो भी सेलर है आपकी उसे डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है. बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द ई कॉमर्स, आई एम प्लेसिंग ऑर्डर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, देन आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेलर. आई एम जस्ट कनेक्टेड विद हिम वाया इंटरनेट, और मैं अपना इंटरनेट पे, वेबसाइट पे कहीं पर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ. आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद हिम. द सेकेंड डिफरेंस इज द सूटेबिलिटी. अगर मुझे स्टैंडर्ड या फिजिकल प्रोडक्ट्स लेने हैं, देन आई कैन गो इन द मार्केट एंड जस्ट ब्रिंग देम, परचेज देम. And e-commerce is basically suitable somehow for the products which may be customized, or the low value products, intangible products or digital products. Like इसमें अगर मैं इसको explain करूँ तो it can be, it totally depends on the nature, size or the class of the product I want to purchase. आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है. इकोनॉमिक्स में यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स में आपने लग्जरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, इस तरह के आपने इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स, ये सब आपने पढ़े हुए हैं. अगर मैं इसमें क्लासिफिकेशन करनी शुरू करूँ तो वहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स और ई कॉमर्स में डिफरेंस आ जाता है. I'm just taking one example. If I want to purchase, let's say, jewelry, मुझे अगर ज्वेलरी परचेज करनी है तो I'll prefer the traditional commerce. I'll just go to particular shop and I'll try to purchase from there itself, until unless कि वो कस्टमाइज नहीं करानी है या किसी ब्रांड की है. ब्रांड की है तो भी मैं एक बार कोशिश यही करूँगी कि मार्केट में जाके मैं उसको सर्वे कर रही हूँ, देख रही हूँ, और फिर अगर फाइनल कर रही हूँ देन आई कैन ट्राई कि मैं उसको ऑनलाइन उसका ऑर्डर कर दूँ. बट अदरवाइज अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट अगर मैं ले रही हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी कि बहुत ज़्यादा महंगा सामान अगर मैं इंटरनेट से मंगा रही हूँ, कहीं ना हो कि कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए. तो समटाइम्स पीपल रेजिस्ट to place order online if they want to purchase high value products. So basically in case I'm talking the purchase of products in terms of the value, कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रही हूँ, देन पीपल नाउ डेज ऑल्सो पीपल ट्राई टू गो फॉर द ट्रेडिशनल कॉमर्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ई कॉमर्स. आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जहाँ बात करते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्योंकि फिजिकली आप कहीं मार्केट में जा रहे हो एंड डायरेक्टली यू आर इंटरेक्टिंग विद द सेलर, देन द आइडेंटिटी इज ऑल्सो वेरीफाइड. कस्टमर कैन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेलर एंड द फिजिकल लोकेशन, की भी बिजनेस है कहाँ, दुकान कहाँ पर है, कौन उसको सामान को बेच रहा है, कौन इसका ओनर है, आप वो सब चीज़ें देख सकते हो. अगर ई कॉमर्स पे देखूंगी तो ई कॉमर्स में नॉर्मली उसकी लोकेशन या आइडेंटिटी सेलर की नहीं पता चलती है, दो you have the name of the seller which is कि कौन प्रोडक्ट बेच रहा है वो आपको पूरा का पूरा वहाँ पे लिखा होता है. बट समटाइम्स यू हैव सम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स which gives the business houses प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं. उनकी अपनी वेबसाइट नहीं है बिजनेस हाउसेस की, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है. लाइक यू टॉक ऑफ लेट्स से Amazon के अपने प्रोडक्ट्स नहीं हैं, बट व्हाट Amazon इज डूइंग, Amazon अपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को कि वो डिजिटली कोई गुड्स या सर्विसेज ले सकते हैं. एट द सेम टाइम इट्स प्रोवाइडिंग
डिजिटल प्लेटफॉर्म टू द सेलर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप इस चैनल के थ्रू, इस मोड के थ्रू, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हो। तो जब भी आप वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ पे अमेजोन के साथ में जो सेलर होगा उसका डिटेल आ जाता है कि उसका सेलर एक्चुअली कौन है। तो यू समटाइम्स यू मे फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेलर, बट at some platforms you may not find the identity along with the location of the seller. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मैनुअली होती है, क्योंकि मैं फिजिकली मार्केट में बैठी हुई हूँ, आई एम मेकिंग पेमेंट ईदर इन कैश और बाय चेक और नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे भी मैं पेमेंट दे रही हूँ वहीं दे रही हूँ। लेकिन जब ई कॉमर्स की बात कर रही हूँ तो ई कॉमर्स में वो सारा का सारा ऑटोमेटेड सिस्टम पे होता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर ऑप्टिंग फॉर द कैश ऑन डिलीवरी। और वो भी हर प्लेटफॉर्म आपको ये ऑप्शन नहीं देता है दैट यू हैव द ऑप्शन टू मेक पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। स्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि आप एक मार्केट एरिया में, पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड एरिया में बैठे हो, तो वहाँ कॉम्पिटिटर्स आपके कंपैरेटिवली कम होंगे। बट इफ़ यू आर गोइंग डिजिटल तो आपका जो वाइड रेंज है, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हो, तो इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो वो जो स्कोप है, जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यू हैव नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु आर competing with you in the market at digital platform. Then we are talking of the marketing strategy. Traditional commerce में marketing strategy होती थी one to many, that one seller is there and it's targeting potential customers available in the market, और वो एक ही seller बहुत सारे लोगों को approach कर रहा है। E-commerce में क्या है, customers they can receive personalized message according to their profile, and they can have the messages as per their purchasing power or as their likes dislikes, their buying behavior। आपका इससे उसके आपके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की लाइक्स डिसलाइक्स के बेसिस पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को आप चेंज करते रहते हैं। मेथड ऑफ प्राइसिंग में क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स में जनरली व्हेन वी टॉक ऑफ प्राइसिंग सिस्टम, इट्स नॉर्मली फिक्स्ड, दो इट कैन बी नेगोशिएबल, आप नेगोशिएट कर सकते हो। ई कॉमर्स में होता क्या है कि ई कॉमर्स में समटाइम्स यू हैव द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू मे फाइंड दैट द प्राइसिंग मेथड्स आर डिफरेंट। उनके अलग, जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं उनके प्राइसिंग मॉडल्स भी अलग अलग होते हैं। Sometimes they may have a pricing model like dynamic, कि वो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता चला जा रहा है, कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो रही है तो उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। या फिर कस्टमाइज प्राइसिंग होगी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से दे रहे हो, उसके हिसाब से एज पर योर रिक्वायरमेंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी चेंज्ड। आपकी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज के हिसाब से प्राइसिंग में भी चेंज होता चला जाएगा। अब डायनेमिक प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है, लाइक इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कुछ टाइम पहले तक क्या सिस्टम था कि अगर आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराते थे या जाकर रेलवे स्टेशन पे काउंटर पे अगर टिकट्स बुक कराते थे तो रेट फिक्स था ट्रेवलिंग का, एंड आप पेमेंट करेंगे नेट के थ्रू या जैसे भी, और प्राइसिंग उसमें जो फेयर था उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे आर फॉलोइंग द डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। व्हाट दे आर डूइंग इज नाउ इज कि जिस भी जहाँ पर भी रूट, जिस रूट पर बेसिकली एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जहाँ डिमांड ज़्यादा होती चली जाएगी, वहाँ के जो फेयर होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। तो डिमांड के हिसाब से उनकी प्राइसिंग चेंज होने लग गई है। तो दे आर नाउअडेज दे आर फॉलोइंग द डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। तो ये आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो ये आपके लिए इजी है मेंटेन करके रखना कि जैसे ही डिमांड बढ़ रही है, कोई भी फ्लक्चुएशन आ रही है, देन यू कैन ऑटोमेटिकली द सिस्टम, आपने प्रोग्रामिंग ऐसे की हुई है कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी
कहीं किसी भी एक पर्टिकुलर रूट की, उसके हिसाब से वहाँ के फेयर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और जब डिमांड जहाँ की कम होगी या रीजनेबल है तो वो आपके मिनिमम प्राइसेस उन्होंने आपने फेयर फिक्स किए हुए, आप उसके हिसाब से उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी। लेकिन इस तरह से डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल्स को एक्चुअली में फिजिकली कहीं पर भी एग्जिस्टेंस में लेकर आना, बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस कर देना वो मुमकिन नहीं होता है। तो इट्स अ पैटर्न विच कैन बी followed when you are using digital platform for the exchange of goods and services. Last is that when we talk of the paperwork or the eco-friendly system or the cost which is involved in traditional commerce, it involves a lot of paperwork, because every time you are supposed to make entries for every transaction, because it has to be registered, it has to be a journal or ledger posting has to be done. तो वो सारी की सारी पेपर रिकॉर्डिंग होती है, सब पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो इको फ्रेंडली कंपैरेटिवली कम है और आपकी उसमें कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जब हम ई कॉमर्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब काम कर रहे हैं तो डेटा जो भी है, डेटा इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, and it is a master file is being created by the company, which is shared at with every department in the organization. तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि एक ही फाइल बनी और वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर हो रही है, जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस मास्टर फाइल में अपडेट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से गैदर करके रिट्रीव करके यूज़ कर लेते हैं। तो पेपर वर्क का जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है इन्वॉल्वमेंट, एंड द कॉस्ट इफेक्टिव आपका ये ज़्यादा हो गया है। नाउ इसमें आपके बेसिकली दो मॉडल्स आते हैं, एक होता है ब्रिक एंड मॉर्टर और दूसरा होता है प्योर ऑनलाइन। नाम आपको बता रहा है कि जो भी आपका बिजनेस मॉडल है वो टोटली ऑनलाइन है, उसकी कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, कोई भी प्रेजेंस नहीं है कस्टमर्स के लिए, टोटल ऑनलाइन है। जैसे कि आपका अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन का कहीं पर भी ऑफिस नहीं है, कहीं पर भी शोरूम नहीं है जहां पर आपके कस्टमर्स आके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। दो दे हैव वेयर हाउसेज, दे मे हैव ऑफिसेज जस्ट फॉर देयर स्टाफ, लेकिन कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस में उनकी कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहाँ कस्टमर्स जाके डीलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जहाँ पर फिजिकली कस्टमर्स के लिए कोई प्रेजेंस उनकी नहीं है, देन इट इज़ नोन एज द प्योर ऑनलाइन और प्योर क्लिक बिजनेस मॉडल। एंड द सेकेंड वन इज द ब्रिक एंड मॉर्टर। इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स जो पहले होते थे, जो अभी भी होते हैं, लेकिन जो जिनका रिटेल स्टोर है जहाँ पर गुड्स या सर्विसेज बिक रहे हैं और वो सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से बेच रहे हैं, दे आर नॉट एट द ई प्लेटफॉर्म। तो दो अभी मैंने आपको बताया, एक है जहाँ पर सिर्फ शॉप खुली हुई है, फिजिकली शोरूम है, स्टोर है, जहाँ पे कस्टमर्स जाके प्रोडक्ट या सर्विसेज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस में एक शोरूम या स्टोर है, दैट इज ब्रिक एंड मॉर्टर। दूसरा है जिसमें प्योर ऑनलाइन होता है, जहाँ पर कस्टमर्स के लिए फिजिकल प्रेजेंस ऑफ नहीं होती है, कोई भी ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है बिजनेस की, उसके अलावा कोई एग्जिस्टेंस कस्टमर्स के लिए नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो इन दोनों का मिक्सचर है, विच इज नोन एज ब्रिक एंड क्लिक्स मॉडल। ब्रिक्स एंड क्लिक्स मॉडल का क्या है कि जो ये दो मेन आपके मॉडल थे, एक आपका ट्रेडिशनल है जहां सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, दूसरा आपका मॉडल है जहां सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है। अब आजकल क्या है कि जस्ट टू कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट, to have more and more to attract more and more potential customers, to have number of to go widely, तो उसके लिए now the businesses what they are doing is इन दोनों को कंबाइन कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया, उन्होंने ऑफलाइन भी कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि एक बिजनेस मॉडल है जो ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहा है, अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, और उसके अलावा में ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स भी हैं, तो उनके अपने आपके वेबसाइट्स भी मिलेंगी,
जहाँ से आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या फिर आप कहीं मार्केट में शोरूम पे जाके उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ले सकते हो. फॉर एग्जांपल यू हैव सैमसंग, यू हैव नोकिया, यू हैव एयरटेल, यू हैव अदर ब्रांड्स ऑल्सो जिनके शोरूम भी हैं जहाँ आप जाके प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो, या आप उनके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं. Now I hope this concept is clear. Now bricks, coming to the difference between bricks and mortar and pure online. अब इन दोनों में क्या है, एक ट्रेडिशनल है और एक आपका टोटल ऑनलाइन है. तो ब्रिक्स एंड मोर्टार में क्या है कि उसमें ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, उसकी सिर्फ ऑफलाइन है. प्योर ऑनलाइन में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है. ब्रिक्स एंड मॉर्टर में कोई भी टेक्नोलॉजी का यूजेज नहीं है, ना ही इंटरनेट है, ना ही कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं. वो ट्रेडिशनल तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक ऑफ प्योर ऑनलाइन, व्हेन वी टॉक ऑफ ब्रिक एंड क्लिक, जहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, वहाँ पर you have the use of technology, you have the use of internet and other technologies which are being used to conduct your businesses. इंटरफेस की अगर हम टर्म्स में बात करें, ट्रेडिशनल में you have face to face interaction between the buyers and customers. But when we talk of pure online, as I already told you, that there is no interface, face to face interaction between the customers and the sellers. They are just the system, the internet is giving you a bridge. It's a connectivity where the customers are being connected with the company's websites through emails or websites or messages, जहाँ पर आप अपने orders को place कर सकते हैं. Then you have, if you talk of hierarchy in the organizational structure, ट्रेडिशनल कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत सारी लेयर्स के साथ हो सकता था, बहुत सारे लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के. लेकिन अगर प्योर ऑनलाइन की बात करें तो उसमें नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जहां कंपनी टीम वर्क में काम कर रही है. यू डोंट हैव, जनरली यू डोंट हैव नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. Competition की terms में if I talk, then in traditional system or the bricks and mortar concept, there are the barriers to the entry. It's not easy to enter in any kind of business. It's very difficult to start a business in on traditional lines, because you want a particular space in the market and you may not get the space in the open market. लेकिन अगर प्योर ऑनलाइन में है तो आपके पास एंट्री बैरियर्स नहीं है. आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यू नीड टू यूज टेक्नोलॉजीज एंड यू डोंट हैव द एंट्री बैरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस और टाइम और द कैपिटल. क्योंकि कैपिटल की भी अगर बात करूँगी तो प्योर ऑनलाइन में कंपैरेटिवली कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम. एक्सेसिबिलिटी में you may have some stores which are open 24/7, but generally it's not accessible. ज़्यादातर सब बंद हो जाते हैं, उनके टाइमिंग्स होते हैं. बट प्योर ऑनलाइन में यू कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम, 24/7, 365 डेज आपके साथ. आप को सिस्टम पे आप कहीं पे भी आपके पास इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. इंटरनेट फैसिलिटी है, देन यू कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम. उसमें टाइम कंस्ट्रेंट कहीं पर भी नहीं आता है. सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ इन the concept of brick and mortar, it includes the usage of CCTV cameras or security guards or alarm system, locks and safes. इस तरह की आप सिक्योरिटी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो, लोग करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम पे. और प्योर ऑनलाइन में हमारा जो डेटा है, डेटा को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है. तो डेटा इज़ प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स. द इंफॉर्मेशन इज़ एनक्रिप्टेड. आप उसको, एनक्रिप्शन बेसिकली मीन्स द कोडिंग ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन, क्रिप्टोग्राफी इन केस ऑफ प्योर ऑनलाइन बिजनेस. प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है ब्रिक्स एंड मोर्टार वाला, इट्स सूटेबल फॉर द स्टैंडर्ड एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स. बट इफ वी टॉक ऑफ द ऑनलाइन मॉडल,
pure online mechanism. It's suitable for the customized products or the low value products or the intangible products, and you don't have any geographical barriers, and you can reach to a wider number of customers. Now I hope it's clear to you, and in case you have any doubt, you can ask me now. Okay, in case you have any doubt, we can we'll connect on Wednesday. Today's lecture is over.